So today we start the new chapter, class 11th, motion in a plane. Motion in a plane. Motion in a plane. So basically, what is a plane? This is XYZ coordinate system. X, Y coordinate system. Or this is the example of 2D motion, two-dimensional motion. Of an object. So students, already we studied motion in one dimension, means object is confined to move along one axis, maybe along x-axis, maybe along y-axis. But now the object will move simultaneously along two axes. So one is called the x-axis and other is called the y-axis. So that is called motion in a plane or 2D motion. So this is my coordinate system, XY coordinate system, and it is my starting point. So how the object do 2D motions and how to explain motion in this XY plane. So before that, we will discuss a little bit about the scalars and vectors. So motion in a plane को स्टडी करने से पहले ये जरूरी है कि थोड़ा सा वेक्टर्स को स्टडी किया जाए. So let us study what are scalars and what are vectors. What are scalars and vectors? Already, students, you must have studied in your grade 9 about scalars and vectors, but still I will elaborate a little more about scalar and vectors, and then finally we will move on to our main topic, motion in a plane. It's a very, very important and very powerful topic used in our daily life, and it has a lot of applications. So what are scalars and vectors? Already we know that we are living in a physical world, and in this physical world we have the physical quantities. We have the physical quantities, and physical quantities further they can be classified as scalar physical quantities or vector physical quantities. So physical quantities further they are classified as scalars and vectors. Here I will take the scalars and here I will take the vectors. So I can take scalar quantities and vector quantities. So let me take the example, what are the scalar quantities and what are the vector quantities. So scalar quantities, so let me take the example of electric current, temperature, frequency, and many more. Infinite number of quantities they are there which are scalars. And similarly, I will take the examples of vectors. I can take
velocity, displacement, we can take acceleration, force. Now, already you must have studied in your grade 9 that these quantities, these scalar quantities, they have only magnitude. So they have only magnitude. No direction. But in case of vector quantities, both the things are there. They have magnitude as well as direction. So these quantities are called scalar quantities and vector quantities. Current has only magnitude. It has only magnitude, no direction. Direction की जरूरत नहीं है. जैसे वायर्स में अगर एक स्ट्रेट वायर है, उसमें करंट फ्लो करता है I करंट फ्लो करता है फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B. अब इस वायर को हम जैसे भी फॉर्म में कर दें, इसको स्पाइरल कर दें या फिर इसको किसी भी शेप में कर दें, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B. सो करंट की कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं होगी. करंट पहले इधर जाएगा फिर इधर जाएगा. तो करंट की कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं होगी. तो यहाँ पे जो करंट है वो डायरेक्शन कन्फाइंड नहीं है, डायरेक्शन से उसका कोई मतलब नहीं है. ओके, वो किसी भी डायरेक्शन से घूमता फिरता है ना, उसने मूव करना है पॉइंट बी से. तो ऐसी जो क्वांटिटीज हैं. टेम्परेचर है, सपोज वी जस्ट बर्न ए कैंडल. हमने एक कैंडल को बर्न किया एंड the temperature is moving in all the directions. So उसमें ऐसा नहीं है कि कैंडल का जो टेम्परेचर है, जो हीट है, वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगी, वो एक्स पे जाती है या वाई पे जाएगी या फिर वो जेड पे जाएगी, ऐसा नहीं है. इट विल गो इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस. सो ऐसी क्वांटिटीज जिसमें डायरेक्शंस का रोल नहीं होता, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं होती, दोज क्वांटिटीज आर कॉल्ड द scalar quantities. But suppose an object is moving from point A to point B, और यहाँ पे जो point B है, suppose let me take this, that is east. और यहाँ पे define किया गया है कि object is moving towards east, है ना, with a speed 40 किलोमीटर पर आवर. तो यहाँ पे 40 जो हो गया उसकी मैग्नीट्यूड, है ना, और ये जो ईस्ट हो गई ये उसकी हो गई डायरेक्शन. सो 40 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट. सो यहाँ पे डायरेक्शन भी स्पेसिफाई है कि किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. जैसे यहाँ पे हीट का डायरेक्शन डिफाइन नहीं है कि हीट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, वो डायरेक्शन यहाँ पे मेंशन नहीं है. सो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन नहीं है, दैट इज कॉल्ड स्केलर. और जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होंगे. यहाँ पे सिर्फ टेम्परेचर की बात करेंगे कि टेम्परेचर की वैल्यू गिवन हो सकती है 10 डिग्री C और टेम्परेचर इज इक्वल टू 100 डिग्री C, है ना. तो ये टेम्परेचर का जो मैग्नीट्यूड है ये गिवन है, बट इसमें ये तो डायरेक्शन नहीं गिवन है कि टेम्परेचर इज टुवर्ड्स ईस्ट और टुवर्ड्स वेस्ट. तो यहाँ पे टेम्परेचर का डायरेक्शन का रोल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि टेम्परेचर किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है. टेम्परेचर तो हर डायरेक्शन में होगा, टेम्परेचर को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फिक्स नहीं कर सकते. सो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें हमें डायरेक्शन की जरूरत ना हो, दैट इज कॉल्ड द स्केलर क्वांटिटी. और ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत हो, दैट इज कॉल्ड द वेक्टर क्वांटिटी. सो अब इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं वो सीखते हैं. हाउ टू रिप्रेजेंट द scalar and how to represent the vector. Basically, how to represent the vectors. So second topic is representation of a vector.
वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करें ये हमें सीखना है। सो जो वेक्टर है दैट इज ए जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। अब वो जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है क्या, कैसे कैसे वो काम करती है, सो उसके बारे में देखते हैं। सो रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो लेट अस स्टडी दैट। सो लेट मी टेक ए डायरेक्शनल फ्रेम। एक डायरेक्शनल फ्रेम को हमने लिया। डायरेक्शनल फ्रेम को हम कैसे दिखाते हैं, दिस इज कॉल्ड ए डायरेक्शनल फ्रेम। डायरेक्शनल फ्रेम, ये कोई एक्चुअल में फ्रेम नहीं होता, ये एक इमेजिनरी फ्रेम है जिसमें हम लिखते हैं कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ये पूरा एक इमेजिनरी फ्रेम है, इसको हम पेपर पे ड्रा कर सकते हैं और जस्ट टू कीप इन अवर माइंड कि ऐसी कोई चीज है, और ये हमारा एक यहाँ पे सेंट्रल पॉइंट है। सो अगर हमें गिवन है कि सम ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम दिस स्टार्टिंग पॉइंट, तो मैं उसको कैसे दिखाऊंगा, उसको मैं कैसे दिखाऊंगा कि द ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट। उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे। लेट मी चूज अनदर कलर। उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस एरो। विद द हेल्प ऑफ दिस एरो उसको रिप्रेजेंट करेंगे फ्रॉम दिस स्टार्टिंग पॉइंट। दिस इज कॉल्ड द स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज कॉल्ड द एंड पॉइंट। ये हो गया हमारा एंड पॉइंट, एंड पॉइंट, एंड पॉइंट, एंड दिस इज कॉल्ड द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। तो इस स्टार्टिंग पॉइंट से किसी ऑब्जेक्ट ने चलना स्टार्ट किया और वो ऑब्जेक्ट यहां तक पहुंचा। सो इसको टेल भी बोलते हैं, इसको टेल बोलते हैं, इसको हेड बोलते हैं। तो इसको टेल भी बोल सकते हैं, टेल, टेल ऑफ द वेक्टर, और इसको बोलते हैं हेड ऑफ द वेक्टर, हेड ऑफ द वेक्टर। सो ये हेड और टेल के बीच की जो लेंथ है, दिस इज कॉल्ड वेक्टर लेंथ, दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द वेक्टर। सो टू हेड टू टेल या टेल टू हेड, दिस इज कॉल्ड वेक्टर लेंथ। वेक्टर लेंथ इसको हम बोलते हैं, ये वेक्टर की लेंथ हो गई। और इसमें जो एरो है दैट विल शो द डायरेक्शन, दिस एरो विल शोज डायरेक्शन। एरो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और जो वेक्टर लेंथ है वो इसकी मैग्नीट्यूड है। वेक्टर लेंथ वो क्या है, वो इसकी मैग्नीट्यूड है। जैसे कोई स्टार्टिंग पॉइंट से यहां तक पहुंचा और उसने 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। सो यहाँ पे जो लेंथ हो गई, लेंथ इज इक्वल टू 10 मीटर, और उसने मूव किया टुवर्ड्स ईस्ट। सो ये तो हो गई मैग्नीट्यूड, ये तो हो गई मैग्नीट्यूड, और जो उसने ईस्ट की तरफ मूव किया, ईस्ट की तरफ मूव किया, वो हो गई डायरेक्शन। सो वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर को हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। और उस एरो में जो ये जो पॉइंट है, दिस शोज द डायरेक्शन, और ये जो वेक्टर लेंथ है दैट शोज द मैग्नीट्यूड। अगर हमारे पास गिवन है कि समथिंग इज मूविंग नॉर्थ ईस्ट मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, समथिंग इज मूविंग नॉर्थ ईस्ट मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखते हैं कि कोई चीज नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव करेगी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री।
So let me take that. So northeast की तरफ मूव करेगी, दिस इज माय ईस्ट, मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। सो ये जो चीज थी अब ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव करेगी, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि ये यहां से इसने मूव किया नॉर्थ ईस्ट की तरफ, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। वही हमारे पास वेक्टर लेंथ था, ये 10 मीटर का कोई वेक्टर हमने दिखाया, और अभी ये इसकी डायरेक्शन होगी नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। अब हमें दिखाना है कि द ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स, दिस इज माय वेस्ट। सो ऑब्जेक्ट हमारे पास 135 डिग्री के एंगल से नॉर्थ वेस्ट है। सो कैसे दिखाएंगे, नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, एंड द एंगल इज 135 डिग्री, 135 डिग्री से नॉर्थ वेस्ट है, 135 डिग्री। तो बेसिकली ये हमारा वही वेक्टर है, 10 मीटर उसकी लेंथ होगी, सिर्फ डायरेक्शन उसकी बदलती जा रही है, उसकी वेक्टर लेंथ में कोई चेंज नहीं आया, वेक्टर लेंथ सेम है। अब इसके अलावा एक और कैटेगरी है वेक्टर्स की जिसके बारे में डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉल्ड पोलर वेक्टर एंड एक्सियल वेक्टर्स। सो व्हाट आर पोलर वेक्टर्स एंड एक्सियल वेक्टर्स? Okay, so let me take the polar vector, and second is the axial vector, axial vector. So अब ये पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर क्या चीज है इसको देखते हैं। सो पोलर वेक्टर को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, व्हेन द वेक्टर क्वांटिटी हैज द वेल डिफाइंड स्टार्टिंग पॉइंट देन इट इज कॉल्ड द पोलर वेक्टर। अगर कोई स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन हो, वेल डिफाइंड स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, तो जैसे हमारे पास रेडियस वेक्टर हो गया, फॉर एग्जांपल रेडियस वेक्टर हो गया, रेडियस वेक्टर, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा रेडियस वेक्टर का? जैसे हमने कोई सर्कल को चूज किया और इस सर्कल में हमने ये सेंटर को लिया और ये लिया हमने रेडियस, और इस रेडियस वेक्टर को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया, आर के ऊपर एक वेक्टर। तो ये हमारा पॉइंट था, ओ स्टार्टिंग पॉइंट था। तो पता है कि ये जो रेडियस वेक्टर है ये सेंटर से जाएगा सरकमफ्रेंस की तरफ, और इसकी जो मैग्नीट्यूड है आर है, और डायरेक्शन क्या है, ये इसकी एरो से इसकी डायरेक्शन दिखाई देख सकते हैं। तो यहाँ पे वेल डिफाइंड स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ये अब जो वेक्टर आर है, दिस इज कॉल्ड ए पोलर वेक्टर, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट है, वेल डिफाइंड स्टार्टिंग पॉइंट है। डिस्प्लेसमेंट, सेकंड एग्जांपल लेके चलते हैं, सेकंड एग्जांपल लेते हैं। कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ ऑब्जेक्ट ने मूव किया, और हमें गिवन है कि वो इस रूट से गया है, तो डायरेक्शन हमें ये डिफाइन होगी ए टू बी। सो ये आ गया वेक्टर ए बी। अब ये वेक्टर डिफाइंड है कि ए से स्टार्ट हुआ और बी पे एंड हुआ। सो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट, और ये हो गया इसका एंड पॉइंट, ये हो गया इसका एंड पॉइंट। सो जब स्टार्टिंग पॉइंट गिवन है, एंड पॉइंट गिवन है, वेक्टर हमारे पास डायरेक्शन गिवन है, सो दैट इज कॉल्ड ए पोलर वेक्टर। सो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, दिस इज कॉल्ड ए डिस्प्लेसमेंट, ए बी वेक्टर इज कॉल्ड ए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो गया, पोलर वेक्टर हो गया, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ए टू बी हो गया। हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि अब ये बी से वापस जा रहा है ए की तरफ, so, अब क्या हो जाएगा वेक्टर बी टू ए, तो ये वेक्टर हो गया बी ए। एक्चुअल में है तो अभी भी डिस्प्लेसमेंट, है तो अभी भी डिस्प्लेसमेंट,
सो डिस्प्लेसमेंट को भी हम पोलर वेक्टर की फॉर्म में डिफाइन करते हैं। उसके बाद हम करते हैं वेलोसिटी। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी भी एक पोलर वेक्टर है। कैसे है? सेम फंडा यूज करते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम ए गोइंग टू बी and the velocity is 10 मीटर पर सेकेंड। ए टू बी है ना, ए टू बी, ए से चलना स्टार्ट किया, बी की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड का, ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया, ये उसकी मैग्नीट्यूड हो गई। और ए टू बी ये उसका डायरेक्शन हो गया, ये हो गया वेक्टर, ये हो गया वेक्टर, ये उसकी होगी डायरेक्शन। सो यहाँ पे जो वेलोसिटी है ए टू बी 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स बी, वो भी एक पोलर वेक्टर की तरह ट्रीट होगा। सो स्टूडेंट्स अब देखते हैं हम एक्सियल वेक्टर क्या होगा। ओके, सो सेकंड इज द एक्सियल वेक्टर। So axial vector को कैसे डिफाइन करेंगे? When the physical quantity represented by vector is not confined along a straight line but is described by a plane at least a rotation। तो इसको हम बोल सकते हैं कि इसमें नो स्ट्रेट लाइन, तो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता। नो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन तो होता ही नहीं है इसमें, नो स्ट्रेट लाइन। तो इसमें होता क्या है? ओनली रोटेशन, इसमें होता है रोटेशन। ऑब्जेक्ट रोटेट करता है, रोटेशन, ऑब्जेक्ट रोटेट करता है, और जब भी रोटेट करेगा तो वो किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। सो जैसे हमने यहाँ पे एक एक्सिस को लिया, ये हमने किसी एक्सिस को चूज किया, ये एक्सिस होगी, और इस एक्सिस के अबाउट ये जो रिंग है ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, इस एक्सिस के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज। सो ये एंटी क्लॉकवाइज इस एक्सिस के अबाउट मूव करता है। सो अब देखो यहाँ पे हमने एक पॉइंट चूज किया, हमने कुछ पॉइंट्स को लिया, ये हो गया पॉइंट ए, यहाँ पे हमने लिया पॉइंट बी, यहाँ पे हमने लिया पॉइंट सी। सो अभी अगर मैं सेंटर से देखूं, सो पॉइंट ए का डायरेक्शन ये है, पॉइंट बी का डायरेक्शन ये है, पॉइंट सी का डायरेक्शन ये है सेंटर से। सो अभी डायरेक्शन, दिस इज माय ओ। सो ये ओ ए अभी इसकी डायरेक्शन दिखाई दे रही है राइट की तरफ है, इसकी डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ है, इसकी डाउन साइड में है। बट जैसे ही रोटेट करेगा सो पॉइंट ए कहीं शिफ्ट कर जाएगा। पॉइंट ए शिफ्ट करने के बाद सपोज करो पॉइंट ए यहाँ पे पहुंच गया, और अभी इसकी डायरेक्शन ये है। बी यहाँ पे पहुंच गया, अभी इसकी डायरेक्शन ये है, और पॉइंट सी यहाँ पे पहुंच गया, अभी इसकी डायरेक्शन ये है। सो इसमें कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होगी। सो एक्सियल वेक्टर वो होते हैं जिनमें बार बार डायरेक्शन चेंज होती रहती है। सो डायरेक्शन चेंजेस ड्यू टू रोटेशन, डायरेक्शन बदलती रहती है, डायरेक्शन चेंजेस ड्यू टू रोटेशन। सो अब जब डायरेक्शन चेंज होती रहती है ड्यू टू रोटेशन, एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है, सो तो फिक्स वेक्टर कैसे होगा? अब सबसे बड़ा इशू ये है कि डायरेक्शन बार बार बदलती जा रही है पॉइंट्स की, और हमें अब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देखनी है बिकॉज वी आर स्टडिंग वेक्टर। सो यहाँ पे जो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इट विल डिसाइड द डायरेक्शन। सो ये डिसाइड करती है डायरेक्शन को। सो इट इज आल्सो कॉल्ड ए सूडो वेक्टर, है ना। सो एक्सिस ऑफ रोटेशन इट गिव्स डायरेक्शन, ये डायरेक्शन को डिसाइड करेगी। सो एक्सिस ऑफ रोटेशन का हमें पता ही है, दो ही पॉसिबल डायरेक्शन हो सकती हैं, या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज करेगा। सो वो डिपेंड करेगा कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर किस तरह की सूडो फोर्स है। अगर सूडो फोर्स क्लॉकवाइज है
सो डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी, अगर सूडो फोर्स एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, और इस सूडो फोर्स के बारे में हम अपने कमिंग लेक्चर्स के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। सो अब एग्जांपल लेके चलते हैं कि एक्सियल वेक्टर क्या होंगे। तो जैसे हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है, अब कोई ऑब्जेक्ट ए से बी, बी से सी मूव करता है, और उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा है। सो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ये रोटेशनल स्पीड होती है एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। उसके बाद टॉर्क है, टॉर्क, टॉर्क का मैंने आप लोगों को बता रखा है, जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगती हैं, ये कोई रोड है, इसके ऊपर एक फोर्स है एफ, एक फोर्स है डाउन, वो भी एफ है, वो भी 10 न्यूटन की मान लो, ये फोर्स भी 10 न्यूटन की मान लो, ये कोई सेंट्रल पॉइंट है। तो इस सेंट्रल पॉइंट के अबाउट अगर ये चीज क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होती है, सो इट मींस ये एक टॉर्क है। इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, दोनों फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड की हैं और दोनों की डायरेक्शन अलग अलग हैं। सो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी, इसके अबाउट ये होगी एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट ये रोड घूमती है। अब ये जब रोड घूमेगी तो दो फोर्सेस होंगी इसके अंदर, इन दो फोर्सेस को बोलते हैं टॉर्क। सो अब वेक्टर्स के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं, सम मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द वेक्टर्स। सो पोलर वेक्टर में हमने देखा कि हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट होता है वेक्टर्स का, जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, जैसे रेडियस वेक्टर हो गया। एक्सियल वेक्टर के अंदर हमारे पास कोई स्टार्टिंग पॉइंट हो तब भी ठीक है, ना हो तब भी ठीक है, बट इसमें एक बात श्योर है कि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता, वो किसी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, वो रोटेशन करता है, और रोटेशन जब भी करेगा वो किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। सो यहाँ पे जो वेक्टर है वो डिसाइड होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन, बेसिकली एक्सिस ऑफ रोटेशन ही यहाँ पे वेक्टर है। ओके, एक्सिस ऑफ रोटेशन ही यहाँ पे वेक्टर है। सो अब कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं वेक्टर्स के बारे में। सो अब हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होगा? व्हाट इज ए पोजीशन वेक्टर? पोजीशन वेक्टर, नाम से ही पता चल रहा है कि ये किसी चीज की पोजीशन को बताएगा। ओके, सो कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे पोजीशन वेक्टर को? इसमें हम दोनों चीजें लेके चलते हैं, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दोनों एक साथ करते हैं। एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दोनों को एक साथ लेके चलते हैं, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो हमने कोई, ये जैसे ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, ये एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स वाई प्लेन है, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, और ये हमारा, सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट हम किसी पॉइंट पी पे शो करते हैं, कोई चीज चलती है पी की तरफ जाती है, और ये हमने एक वेक्टर दिखा दिया ओपी वेक्टर, और ये जो इसका पोजीशन है इसको हम दिखाते हैं वेक्टर आर। ये हमने दिखा दिया वेक्टर R1, ये हो गया इसका पोजीशन वेक्टर, इसको हमने दिखा दिया पोजीशन वेक्टर। और एक सेकंड पॉइंट है जिसको हमने लिया Q, एक सेकंड पॉइंट है Q, और उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमने डिफाइन किया R2। सो एक पहला पॉइंट लिया P जिसका पोजीशन वेक्टर है R1, और ये एक्चुअल में इस ओपी वेक्टर, ये वेक्टर लेंथ होगी R1 जिसका स्टार्टिंग पॉइंट O है, जिसका एंडिंग पॉइंट P है। तो ये जो वेक्टर लेंथ होगी R1 होगी। तो ये वेक्टर लेंथ ही इस पॉइंट P को यहाँ पे डिसाइड करेगी, इस पॉइंट को यहाँ पे फिक्स करेगी। ऐसे ही ये वेक्टर लेंथ इस पॉइंट को यहाँ पे Q को फिक्स करेगी। और अगर मैं यहाँ पे एक थर्ड वेक्टर लूं, एक थर्ड वेक्टर लूं P से Q की तरफ, P से Q की तरफ, ओके, सो ये वेक्टर पी क्यू हो गया। सो अब देखते हैं इसमें ये वेक्टर एक्चुअल में है क्या चीज। सो यहाँ पे जो R1 है, R1 है दैट इज
पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, वो पी की पोजीशन को बताएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, वो पी की पोजीशन को बताएगा। व्हाट इज R2? इट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, ये Q की पोजीशन को बताएगा। एंड व्हाट इज PQ? ये जो PQ है ये क्या चीज है? वेक्टर PQ, वेक्टर PQ, ये वाला जो वेक्टर है ये क्या चीज है? ये वेक्टर, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वेक्टर P और Q के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये पॉइंट P चल के Q पे आया है, या P और Q के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट है, सो वो डिस्प्लेसमेंट हम लिखते हैं एक वेक्टर से, एंड दैट वेक्टर इज कॉल्ड द PQ वेक्टर। सो पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट की पोजीशन को बताएगा, जैसे हमने पॉइंट P की पोजीशन को बताया वेक्टर R1 से, पॉइंट Q को हमने लोकेट किया, पॉइंट Q को हमने बताया विद पोजीशन वेक्टर R2, और P और Q के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट है, कितना सेपरेशन है, उसको हमने बताया एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से। कुछ और नई टर्म्स हैं वेक्टर्स के बारे में देखते हैं। सो सेकंड इज कॉल्ड जीरो वेक्टर्स। अब ये जीरो वेक्टर क्या है? जीरो वेक्टर, भाई जीरो वेक्टर तो तब होगा जब स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम हो, सेम स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग एंड पॉइंट, अगर स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम हो, दैट इज कॉल्ड द जीरो वेक्टर, कि उसकी लेंथ जीरो है, इट मींस जीरो लेंथ, ये एक ऐसा वेक्टर है जिसकी लेंथ ही जीरो है, जिसकी लेंथ जीरो है। तो इसमें मैग्नीट्यूड भी जीरो है, इसकी मैग्नीट्यूड भी जीरो है, और इसकी डायरेक्शन भी नहीं है, डायरेक्शन लेस है। सो दैट इज कॉल्ड ए जीरो वेक्टर। सो हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं? हम इसको ग्राफिकली तो दिखा ही नहीं सकते, क्योंकि जीरो वेक्टर का मतलब नो वेक्टर, कोई वेक्टर ही नहीं है, नो वेक्टर। बट हम ऐसे दिखा सकते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, एंड द डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर दैट इज इक्वल टू ए जीरो वेक्टर, ऐसे इसको दिखा सकते हैं। सो इट मीन्स अगर ऐसा हो जाए कि दोनों वेक्टर्स का डिफरेंस जीरो है, सो दैट मीन्स वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, that is called a zero vector. The zero vector is a vector of zero magnitude having no specific direction. Initial and terminal points are coincident. And जीरो वेक्टर को सिंगल किसी वेक्टर को जीरो वेक्टर नहीं दिखा सकते ग्राफिकली, बट दो वेक्टर का डिफरेंस जीरो के इक्वल दिखा सकते हैं, मींस ये दोनों वेक्टर सेम है। सो जीरो वेक्टर इज हैविंग ए ग्रेट सिग्निफिकेंट इन वेक्टर्स। जैसे जीरो का रियल नंबर्स के अंदर बहुत सिग्निफिकेंस है, वैसे ही जीरो वेक्टर का भी वेक्टर्स में बहुत सिग्निफिकेंस है। सो स्टूडेंट्स, आई विल कंटिन्यू with the same lecture on vectors in my next lecture. So एक lecture और हम vectors पे करेंगे, and then finally we will move to the motion in a plane. Okay, that's all for today. Adarsh, okay, bye. Okay, sir.